Okay, so in the last class, I did talk about the types of functions and we considered certain examples to check whether the given function is 1, or onto. And if it is both, it is known as a bijective function. So that's all about in our reduced syllabus. We will not be generally talking about inverse of a function. But still, because that's a very easy idea and in competitive exams, you might expect that. So I'll be talking in brief about that also. So let's consider a few more problems. Probably that was a question given to you in your homework. You show that the modulus function from f from R to R, f of x is mod of x is neither 1 nor onto. So that's a clear hint to us कि ये 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है. तो उसका मतलब we just need to provide one counter example. One can easily note this is a function from R to R and f of 1 is 1, f of -1 मतलब इसका मॉड निकाल रहे हैं तो -1 का मॉड भी 1 होता है. So clearly f of 1 and f of -1 both are same. This imply clearly f is not 1. Or using the line test, ये होता है आपका mod x का फंक्शन. यहां लगता है horizontal line test. You draw the horizontal line, a line parallel to x-axis. Since this is cutting the graph at more than 1 point, hence it is not 1. The other way around, you can talk about the derivative as well. तो अगर आपका फंक्शन ये स्प्लिट होता है when x is greater than or equal to 0 पे x है, otherwise minus x है. So derivative when x is positive, it is 1 and it is -1 when it is negative. तो इसीलिए strictly increasing कभी है और कभी strictly decreasing है. इसीलिए it is not 1. So there are number of ways to think about this. I would recommend the first approach counter example से अगर आप बता देते हैं. सेकेंड, अब हम बात करते हैं फॉर नॉट ऑन टू. नॉट ऑन टू के केस में भी देखो लॉजिकली हम क्या सोच सकते हैं. द फंक्शन जो आपको गिवन है mod x, सिंस mod ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी. बट आपको कोडोमेन क्या गिवन है, ये रहा. कोडोमेन इज गिवन एज R. Clearly range is not equal to codomain, so this imply f is not onto. The other way round आप इसको कैसे सोच सकते थे. Think of the arrow diagram. Onto में generally I recommend this way. ये फंक्शन है आपका R to R, wherein यहां x है तो यहां सारे एलिमेंट्स mod x की फॉर्म में है. R कोडोमेन में फोकस करा, बस कोई भी एक एलिमेंट सोच लो, एक रियल नंबर. -1 इज अ रियल नंबर, so -1 belongs to your कोडोमेन. इसका मतलब ये इसकी फॉर्म में होना चाहिए, mod x की फॉर्म में, which is not possible. So इसका मतलब क्या हो गया, -1 belongs to codomain, do not have any pre-image in the domain. This imply f is not onto. पेपर में दोनों करके नहीं दिखाने हैं, ये आपके ऊपर है. ईदर गो फॉर दिस अप्रोच और दिस अप्रोच.
बाकी दोनों बता देंगे दैट इज एक्सीलेंट, डिपेंड्स कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास एग्जाम में। ये कंसेप्ट को समझने के लिए अभी मैंने बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन ही इसको मैं काउंट करता हूं। वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ये तो क्विकली अब आप समझ पाएंगे। f from r to r, f of x is greatest integer function. Again, for not 1 1 कहा गया है, नहीं तो आप वैसे भी सोच सकते हैं। A simple counter example is sufficient. लॉजिकली सोचिए, से 1.1 है और 1.2 है, बोथ आर रियल, मेरी डोमेन में है। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट ऑफ कोर्स एवरीवन ऑफ यू नोस इट्स 1, और ये भी 1 है, तो क्लियरली इट इज अ मैनी वन फंक्शन, और f is not 1 1. For not onto, again one can think in the following way, ये R to R है, और अगर यहाँ x है तो यहाँ सारे एलिमेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में हैं। थिंक ऑफ सम रियल नंबर से हाफ, दिस इज सम रियल नंबर इन माय कोडोमेन, इसका मतलब इट शुड बी ऑफ द फॉर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर, विच इज नॉट पॉसिबल। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर होता है, सो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। और जनरलाइज्ड वे में आप कैसे कह सकते थे, रेंज क्या होती है मॉडुलस फंक्शन की, इट इज z, इंटीजर्स होती है, और कोडोमेन इज ऑलरेडी गिवन एज r। बस फिर वही चीज आ गई, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, this imply f is not onto. Check out this question. Clear definition आपको given है, it's a piecewise function when n is a natural number, right? n यहाँ है, odd है या even है, अलग definition हो रही है। State whether it is bijective or not. तो अब हम एक बार, अभी गारंटी या श्योरिटी नहीं है ना, तो फॉर 1 1 अगर मैं इसको सोचता हूं, तो आप चेक करिए, व्हाट इज f of 1, 1 इज ऑड नंबर, ये ऊपर वाली डेफिनेशन लग गई। सिमिलरली f of 2 निकाला, n इज इवन, नीचे वाली डेफिनेशन, एंड क्लियरली 1, सो f of 1 आ गया f of 2 के इक्वल, मीन्स व्हाट आई जस्ट जस्टिफाइड, 1 एंड 2 दोनों की इमेज सेम है, दिस इंप्लाई f is not 1 1. Since this is not 1 1, so clearly it is not bijective, right? So answer to this question is completed. Yet मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहा हूं, नॉट इन अ मच थियोरिटिकल एब्स्ट्रैक्ट मैनर। एक्चुअली f जो है वो ऑन टू है,
वो मैं एक आपको बेसिक हिंट दे रहा हूं कि हम इसको कैसे सोच सकते हैं। ऑन टू का बेसिक डेफिनेशन को अब देखो कैसे मैं यहां यूज कर रहा हूं। एफ फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल है, राइट। इसका मतलब यहां आपके पास नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सेम वे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो अब अगर हम मैपिंग को चेक करें, एफ ऑफ वन वन, एफ ऑफ टू आपने देख लिया, वो भी वन आ रहा है। एफ ऑफ थ्री जब निकालेंगे टू है। एफ ऑफ फोर देख लीजिए, वो भी टू है। एफ ऑफ फाइव इज थ्री, एफ ऑफ सिक्स इज थ्री। व्हाट डज दैट मीन? एन तो इन्फानाइट होते हैं, इसका मतलब अगर मैं अपनी कोडोमेन के नेचुरल नंबर्स पे फोकस करूं, every element must have the pre-image in the domain। कोई भी एलिमेंट खाली थोड़ी बच रहा है, कहीं ना कहीं सेवन की मैपिंग किसके साथ हो रही होगी? वन कैन इजीली थिंक अबाउट दैट कि सेवन कब आया होगा मेरा आंसर, एट कब मैपिंग में रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं पिछले एलिमेंट से इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सो इससे क्लियर हो जाता है कि एफ इज ऑन टू। Is this idea is clear? एक बार chat box में if I can see your yes or no. Okay, Vanshika, right, Upasna. Arjav, that is not a part of our syllabus. वो ना इतना वो typical वो उसकी चीजें हो जाती है। If you are interested, I will send you the solution to this कि ये on to कैसे है। वो एक abstract method आपका सोचने का हो जाता है reverse manner में कि जब n odd है। एक hint दे देता हूं, n odd का मतलब क्या होता है? n आपका क्या हो गया से 2m प्लस वन। तो 2m प्लस वन अगर n होता है तो ऐसे कोई भी एलिमेंट मैंने उठाया यहां से, इसके लिए या इसको, चलो आप देखो, इसके लिए पीछे इमेज कोई एग्जिस्ट कर रही है तो मैं n की जगह जब यहां रखूंगा 2m प्लस वन और प्लस वन बाई टू, तो ये कितना आएगा? 2m प्लस टू बाई टू विच इज m प्लस वन। तो इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है इन दी डोमेन। तो उसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन अलग से भेज दूंगा, फिर मतलब अलग से मैंने ग्रुप पे ही डाल दूंगा ये। तो मेन आप फोकस करिए ऑन टू वाले पार्ट के ऊपर, सॉरी वन वन। ऑन टू कैन बी अवॉइडेड हेयर फ्रेंकली। चेक आउट दिस क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़िए, आई एम वेटिंग। So what is given to us? A is r minus थ्री, रियल में से सिर्फ थ्री नहीं हो सकता, और B है r माइनस वन। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम A टू B। A कितना है मैं लिख ही देता हूं, r माइनस थ्री से लेकर r माइनस वन, डिफाइंड एज x माइनस टू ओवर x माइनस थ्री। इज f वन वन और ऑन टू? बाइजेक्टिव वगैरह चेक करना है। So for 1 1, follow the usual method, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। ये ध्यान रखिए यहां डोमेन के एलिमेंट लिखे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं हम? लेट f of x1 इज f of x2। इसका मतलब x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री, ये हो गया ना f of x1। रिप्लेस x बाय
x1 और नेक्स्ट आ जाएगा इसके इक्वल f of x2. Now you just need to cross multiply. Simple algebraic calculation involve होंगी. x1 minus 3 into x2 minus 2. Open the bracket in a usual manner. आप चेक करेंगे आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है क्लियरली ओनली x1 इज इक्वल टू x2 और इसका मतलब f हो गया 1 1. फॉर ऑन टू जनरल अप्रोच कैसे स्टार्ट करी थी? लेट y इज इक्वल टू fx. fx आपका है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. आप x को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ y, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ओपन द ब्रैकेट और अब आप x की वैल्यू एलिमिनेट करने जा रहे हैं. ये x हो गया इधर आकर और ये 3y इधर आकर प्लस हो जाएगा. रीअरेंज किया है, x कॉमन, x आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. क्लियरली अगर मेरा x डिफाइंड है मतलब RHS भी डिफाइंड होगा और RHS कब डिफाइन होगा? जब नीचे जीरो नहीं होगा, मतलब y कैन नॉट बी 1 और इन सिंपल वर्ड y बिलोंग्स टू 1 नहीं हो सकता. 1 के अलावा तो कुछ भी हो सकता है, मींस r माइनस 1. और चेक इट आउट, ये आपको ऑलरेडी कोडोमेन गिवन है क्वेश्चन में, r माइनस 1 ये रहा. दैट इज मैंने क्या जस्टिफाई कर दिया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और दिस इंप्लाई, या पूरी स्टेटमेंट अगर आप वो थ्योरेटिकल लिखना चाहते हैं तो दैट इज हाईली अप्रिशिएबल. इसके साथ आपको मैंने क्या एक स्टेटमेंट बताई है, थर्स for each y belongs to codomain there exists some x belongs to domain such that f of x is equal to y. ये तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है विद अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग और दिस इंप्लाई f is on to. तो f आपका 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया. अब मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां, f being 1 1 and on to imply f is बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव होने का मतलब f is इनवर्टिबल. इनवर्टिबल का मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट. सो हम इस फंक्शन का इनवर्स कैसे लिखते हैं? इट्स वेरी इजी, यू कैन ऑल अंडरस्टैंड क्योंकि सब कुछ यहीं आ चुका है. आप चेक करिए y था इक्वल टू एफ एक्स. अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो मैं इससे x को क्या लिख सकता हूं, f जो यहां है इधर आकर f इनवर्स बन जाएगा. थिंक अबाउट साइन से हमने करा था ना साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सेम वे ये आ गया x की वैल्यू.
ऑल्सो हमने x की कहीं ना कहीं वैल्यू निकाली होगी ऑन टू करते समय। ये रही, ये x की वैल्यू है। दोनों x की वैल्यूज को इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 f इनवर्स y कितना आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये साथ में लिख दो तो बेटर है, y कैन नॉट बी 1। और ये ऑप्शनल है लास्ट वाली लाइन। जनरली हम फंक्शन हो या उसका इनवर्स हो x की टर्म में लिखते हैं, दैट इज नो वे हार्ड एंड फास्ट रूल। बट यहां आप करना चाहो तो x की टर्म में अपने आंसर को दिखा दीजिए, एंड दिस विल गिव यू द फाइनली इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब एक्स्ट्रा जो चीज मैंने बता दी, अब सिर्फ ये लास्ट के 4 स्टेप्स जो हैं वो अब आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, इनवर्स को लिखना। बट वन कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस एज वेल। Check it out. If there is any doubt, you can ask. बाकी सिंपल चीजें हैं, बाकी मैंने होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। When you practice that, you'll have a better idea. Show that the function f from R to R given by f of x is equal to x cube plus 3 is invertible. Find the inverse. Invertible का मतलब वही बाइजेक्टिव होना, माने 1 1 and on 2 बताना है. So that part I leave it to you. For 1 1 क्विकली बस अब आप समझ लीजिए, x1 x2 लेंगे आप R में, कौन सा डोमेन, फिर आपने लिया होगा f of x1 इज इक्वल टू f of x2, इससे आ गया होगा ये रिजल्ट, और इससे x1 क्यूब इज x2 क्यूब, रियल सॉल्यूशन इसका यही आता है रियल डोमेन में, और f हो गया ऑन टू। फॉर सॉरी 1 1 ऑन टू तो आप करेंगे, फॉर ऑन टू y लेते हैं fx के इक्वल, इससे y माइनस 3 आ गया x क्यूब, और फाइनली x आ गया y माइनस 3 की पावर 1/3। बस अब आपको सिंपल चीज यहां क्या सोचनी है, y आपका क्या है, रियल नंबर है, y fx है, fx तो यहां है सारा, y रियल है। तो अब आप लॉजिकली सोचिए, किसी भी रियल नंबर में से अगर हम 3 यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका क्यूब रूट निकाल दिया है, याद रखिए इवन अगर ये नेगेटिव भी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, नेगेटिव का भी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो रियल ही है। इसका मतलब ये टर्म रियल हो गई, एक्स भी रियल आ गया, वो ऑलरेडी हमारे पास था। तो इसका मतलब हम इसके बाद स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिख देंगे, थस फॉर ईच y बिलोंग्स टू को डोमेन, अब तो रट जाती है ये, there exists some x belongs to domain such that f of x is equal to y, that is range is equal to codomain, or this imply f is onto। बस अब इनवर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं, टू फाइंड f इनवर्स वो एक ही लाइन का है, y is fx, x आ गया f इनवर्स y। ऑल्सो मैंने x की वैल्यू यहां ये निकाली थी, y माइनस 3 का क्यूब रूट, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों x को कंपेयर कर दीजिए, यू विल हैव द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब आप इसको x की टर्म में लिखते हैं वो भी ठीक है, और यू कैन लीव दैट एज वेल।
आई वाज लिटिल बिट फास्टर बट समझ आया है। एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर? ओके ठीक है, आर्जव, शिखर, उपासना, वंशिका, फाइन। अब यहां से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यहां से थोड़ा ध्यान से देखना है और ट्रिकी है। प्रूव दैट द फंक्शन f from n to n given by x square plus x plus 1 is 1 1 but not 1 2 for 1 1। Start with the usual method. क्या? Let x1 x2 belongs to the domain which is a natural number here. Let f of x1 is equal to f of x2। x1 f of x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 और प्लस 1। ऐसे ही f of x2 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसल। सिस्टमैटिक वे में देखिए मैं रीअरेंज कर रहा हूं, चारों टर्म एलएचएस में ले आया। कंबाइन फर्स्ट टू लास्ट टू, फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया। यहां से तो चलो 1 ही कॉमन है। x1 माइनस x2 दोनों में से कॉमन, इन ब्रैकेट बचेगा x1 प्लस x2 प्लस 1 इज 0। This imply either this is 0 or this factor is 0. This imply x1 is x2 और ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? x1 x2 तो नेचुरल नंबर है ऑलरेडी, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन नेवर बी 0, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन आई x1 इक्वल टू x2 which means f is 1 1। फर्दर बात करते हैं फॉर ऑन टू। वैसे तो उन्होंने कह ही दिया है फॉर नॉट ऑन टू। अब यहां पर या तो मैं इस फंक्शन की रेंज निकाल लूं, बट पॉसिबली रेंज निकालना हर एक बार हमारे लिए इजी नहीं हो। सो अदर वे राउंड आप क्या सोच सकते थे ऑन टू के लिए? काउंटर एग्जाम्पल, थिंक फॉर सम काउंटर एग्जाम्पल दैट मस्ट एग्जिस्ट। यही सेम देखो, बार बार यही चीज मैं बनाता हूं, जैसे दिया है एन टू एन, यहां एक्स है और यहां सारे एलिमेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की फॉर्म में है। यहां नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेट मी पिक से 2, 2 बिलोंग्स टू माई कोडोमेन। कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में होने चाहिए। एक बार इसे अब अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये रीअरेंज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो x कितना आ गया? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 बाय 2। डू रिमेंबर x जो है यहां होना चाहिए था,
विच इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर तो नहीं आया। व्हाट डज दैट मीन कि 2 जो है मेरा को डोमेन में है, बट इसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। So this imply F is not onto. One counter example is sufficient to justify that this is not onto. हो सकता है कि मैं रैंडमली कोई ऐसा नेचुरल नंबर ले लेता और उसके ऊपर शायद ही ऑन टू आ जाता, तो उससे देखकर ये नहीं कह देंगे कि देखो इस एग्जांपल में तो ये ऑन टू आ गया है। अगर एक भी काउंटर एग्जिस्ट कर रहा है जो मैंने दिखा दिया अभी सामने, तो इट विल बी नॉट ऑन टू, राइट, विच कंप्लीट्स योर सॉल्यूशन। वैसे मैं ऑन टू के लिए, सॉरी, वन वन के लिए अगर आपको कुछ और याद आ रहा हो, ऑल्टरनेटिव मेथड, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का 2x प्लस 1, x नेचुरल नंबर है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब f है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, every strictly increasing function is 1 1, that's it। तो जो ये इतना बड़ा हमने किया था सॉल्यूशन, एक्चुअली वो 2 लाइन का था, बट स्टिल वही है, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेट्स ट्राई टू अवॉइड दिस डेरिवेटिव वाला मेथड। अदरवाइज लॉजिकली सोचा जाए, कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए, दिस इज परफेक्ट आंसर, परफेक्ट है ये। आई गिव फुल मार्क्स टू दिस, बट और टीचर्स अब क्या करें बोर्ड में, आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट, इसीलिए शायद अवॉइड करना चाहिए। सो दैट एफ फ्रॉम आर माइनस माइनस वन से लेकर आर में डिफाइंड एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, शो एफ इज नॉट 1 1। ऑन टू तो टफ पार्ट हो जाता है, इसलिए उसकी बात ही नहीं करी जब बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ एफ इज नॉट 1 1, that simply means I need to think for the counter example for not 1 1. Can anyone think of some counter example? देखिए जरा। वो ये डायरेक्ट एकदम से सोचना इजी नहीं है, एक आपको हिंट देता हूं। व्हाट इज एफ ऑफ 0 एंड व्हाट इज एफ ऑफ 1? 1 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0, 1 आ गया, और एफ ऑफ 1 निकाल कर देख लीजिए, that is again 2 by 2 1। so I think the idea is clear। दोनों मेरी डोमेन के एलिमेंट लिए थे मैंने, और दोनों की इमेज सेम आ रही है, so this imply f is not 1 1 आंसर। वेल ये नोटेशन में जो 1 1 ऐसे लिखा है ना, अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करूं तो 1 1 ऐसे लिखना गलत है, it should be written like this only। बाकी ठीक है, इन सम ऑफ द बुक्स इवन दे ऑथर्स राइट लाइक दिस, जबकि ये गलत नोटेशन मानी जाती है मैथमेटिकली। कंसिडर एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव, मतलब लिख भी दिया है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। यहां से 4 टू इंफिनिटी में एक फंक्शन डिफाइन करा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। show that f is invertible with this inverse। let's forget about inverse वाला part, but f is invertible का मतलब f 1 1 और on 2 है, तो वो तो बिल्कुल आपके सिलेबस का ही पार्ट है।
तो क्वेश्चन थोड़ा सा रीमॉडिफाई करके भी बोर्ड में दिया जा सकता है। चाहे इनवर्स हट गया है ना, पर उसका जो हाफ ऑफ द या प्रीवियस कंसेप्ट है दैट इज वेरी मच इन योर सिलेबस। फॉर 1-1 आई लीव इट टू यू। आपको एक बेसिक हिंट दे देता हूं, यूज दिस अप्रोच, और इससे सिंपली आएगा x1 इज x2। फॉर ऑन टू अगेन आप चेक करिए, ये तो इजी है बताना। वी नो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। 4 ऐड कर दो। इन अदर वर्ड एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब रेंज इस फंक्शन की आ गई 4 टू इंफिनिटी। चेक इट आउट, दिस इज गिवन एज डायरेक्टली कोडोमेन। सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, एफ हो गया ऑन टू। And that's the last question. एफ डैश ये एक नोटेशन थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग दे दिया है, बट इट्स नॉट द डेरिवेटिव। सिंपली एक फंक्शन आपके पास, मैं इसको सीधा क्वेश्चन की लैंग्वेज को जो प्रॉपर है वो लिख देता हूं। एन से लेकर एफ ऑफ आर, रेंज ऑफ एफ लिखा है, एस एस को कह दिया रेंज ऑफ एफ, तो सिंपली एफ है एन से लेकर रेंज ऑफ एफ में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 4x² प्लस 12x प्लस 15। शो दैट इट इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल वाला ही पार्ट हम सिर्फ सोचते हैं, माने 1-1 एंड ऑन टू। फॉर 1-1 वन वे, ट्राई इट आउट इन योर होमवर्क। एंड आफ्टर सम कैलकुलेशन अल्टीमेटली एक पार्ट रिजेक्ट होगा और सिंपली मिलेगा ओनली x1 इज इक्वल टू x2। फॉर ऑन टू की जब मैं बात करता हूं, आप अगर ध्यान से देखें, यहां पर आपको वैसे कोडोमेन दिया होता है, पर अब क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली इन्होंने पहले ही इसको रेंज दे दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में ही आपको रेंज गिवन था कोडोमेन के, और विच मींस एफ इज ऑन टू, प्रूव्ड। वन वन करने का दूसरा मेथड, डेरिवेटिव 8x प्लस 12, इसका डेरिवेटिव, और चेक करो n नेचुरल नंबर है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। f हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1-1। And here comes the 4 questions for your homework. जो आज करवाया है उन्हीं पे बेस्ड है, पहचान बन जाएगी आपको। इनवर्स बस हटा देना, बाकी ठीक है। शो दैट एफ इज 1-1 एंड ऑन टू। So try out these 4 questions and that is more than enough, sufficient है। इतना भी अगर आपने अपना कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर से, that will be fine। और जहां तक अभी बात हो रही है स्कूल्स के रीओपनिंग की, तो वो उसके लिए देयर इज अ मीटिंग इन द स्कूल टुडे, तो वी टीचर्स आर गोइंग एंड देयर विल बी अ डिस्कशन। और प्री बोर्ड्स हैं, मान के चलिए शायद फर्स्ट प्री बोर्ड तो ऑनलाइन ही है, उसके बाद की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, और या आपको सिर्फ बीच में रिवाइज करने के लिए या प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा आपको फेस वाइज रोल नंबर वाइज या किस तरह से है, that will be discussed today and then only it will be communicated to you। Actually one or two students they were sending me personal message and asking कि स्कूल खुल गए हैं क्या होगा प्री बोर्ड। that's the reason I am just telling to you कि nothing is finalized yet, एकदम से ऐसे possible नहीं होता है, right? So it will take some time to think and to come out with the best possible solution।
Hope to see you all soon. Good day. Thank you. You can leave the meeting now. Okay. Thank you. Sir. Yeah. Rashika.